ساتواں باب طوفان عظیم۔ قلب عاشق جب ہر قسم کی خواہشات اور خیالات سے پاک ہو جاتا ہے تو آئینہ بن جاتا ہے جس کو ایک مبتدی بھی محسوس کرنے لگتا ہے اور مستقبل کی عکاسی کرنے لگتا ہے۔ اس قسم کی خبر خوابوں اور بشارتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہر بات بالمشافہ ہوتی ہے، مگر دل کی صفائی کے باوجود جب تک یقین کی قوت اس میں نہ ہو اور اندر غوطہ لگانے کا راستہ معلوم نہ ہو، اس وقت تک ایسی باتیں دھندلی دھندلی معلوم ہوتی ہیں۔ دل کا آئینہ جب پوری طرح مجلہ ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کے زیر و بم کا ترجمان بن کر اس کی عکاسی کرنے لگتا ہے۔ دل کا آئینہ چونکہ اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے جہاں وہ فروغ زندگی کے بے پایاں ابھار کی ایک لطیف لذت اور بے لوث خوشی محسوس کرتا ہے، وہاں ساری دنیا کے دکھ درد کو بھی اپنے میں سمو لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ آئینہ قدرت کے اس ارادہ اور مشیت کی بھی عکاسی کرتا ہے جس نے لفظ کن کی شکل اختیار کر کے عالم کو وجود کی شکل دی تھی۔ یہی آئینہ جب مکمل ہو جاتا ہے اور بیچ میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا تو پھر ایک ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر عالم اسی کے سارے حالات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ عاشقی و معشوقی کے عجیب رموز و اسرار ہیں۔ جب دوئی مٹ جاتی ہے تو عاشق و معشوق کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اس شان یکتائی میں سارا عالم اس فرد کی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کن کی خاصیت رکھتا ہے۔ گفتہ و گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ قول خدا کے بندے کے حلق سے نکلا ہوتا ہے۔ عالم اسباب میں تو ایک چیز دوسری چیز سے بنتی ہے، علت و معلول کا سلسلہ قائم ہے، مگر اس مقام پر ہر چیز اور ہر واقعہ عدم سے خود وجود میں آ جاتا ہے اور نفی سے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سامان کی۔ باطن سے اٹھنے والے طوفان کی کون عکاسی کرتا ہے؟ کیا تعجب ہے کہ بڑی بڑی جنگیں، زلزلے، طغیانیاں اور اسی طرح کے واقعات کسی نہ کسی فرد کے باطن کے عکس ہوں، ایسے فرد کے جو مرکز حق ہو چکا ہے، اور کیا عجب ہے کہ ملتوں اور قوموں کا فروغ اور نشو و نما بھی کسی مرد حق آگاہ کے قلب کی کیفیات کے عکس ہوں۔ ہر برگزیدہ ہستی کی زندگی میں ایک دو ایسے نازک وقت ضرور آتے ہیں جن میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی زندگی ایک پلٹا کھاتی ہے اور اس کی حیات کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح بطن مادر میں 9 مہینے پرورش پا کر جب بچہ اس روشنی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو خون سے پرورش کرنے والی ماں کو ایک قیامت خیز طوفانی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی برگزیدہ ہستی کی منزل ختم ہو جاتی ہے تو ماحول جس نے اپنے گہوارے میں جھلا جھلا کر اسے پالا اور اپنی رنگینیوں کے گیت گاگا کر پوسا تھا، اس کی جدائی سے تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کتنا مشکل اور اہم سوال ہے کہ منزل کا مسافر اپنے ارادے اور مرضی سے قدم اٹھاتا ہے یا اس وجہ سے کہ مشیت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو محترم زلیخا کی تہمت پر جب جیل خانے بھیجا
इतना मुश्किल और अहम सवाल है कि मंजिल का मुसाफिर अपने इरादे और मर्जी से कदम उठाता है या इस वजह से कि मशीयत इसका साथ देती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोहतरम जुलेखा की तोहमत पर जब जेल खाने भेजा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब दार की सज़ा दी गई और हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की जब काल खींची गई, तो इसकी तह में कौन था और ये किसकी कार फरमाई थी। ये सब बड़े नाजुक मामलात हैं। जिन हस्तियों से रब्बुल इज़्ज़त को कुछ काम लेना होता है, उनको ऐसे हालात का मुकाबला करना ही पड़ता है, और इस मंजिल के तय करने के बाद भी जिस्म का खोल उनके बसेरे के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी मूतो क़ब्ल अन तमूतो, मौत से पहले मर जाओ के बाद हयात जावेदानी अता होती है, और वो फ़ानी जिस्म में रहते हुए इससे बेनियाज हो जाते हैं। इनमें वो जिनको आलम मिसाल में कुछ करना नहीं होता, पसे पर्दा मशगूल हो जाते हैं। ये मंजिल ऐसी होती है जिसके रास्ते को तय करने के लिए रूह इंसानी को लाजमी तौर पर इस जिस्म के बंधन से सुबकदोश होना पड़ता है। तारीख बताती है कि सदियों में एक ऐसी हस्ती भी आलम वजूद में आती है जो ज़मान व मकान से आज़ाद हो चुकने पर भी इस मिट्टी के जिस्म में रहना पसंद करती है। ये मकाम उबूदियत है और तकमील इंसानी का आखिरी मकाम है। ये मकाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया और खालिक कायनात का इंसानियत पर आखिरी इकराम है। ये वो एहसान है जिसकी इब्तिदा अलस्तु बिरब्बिकुम से हुई और इंतहा में इसने अर्श आज़म पर काबा कौसैन की शक्ल इख्तियार की। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के अफराद बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे और इन पर फौकियत भी रखेंगे। ये बना बनाया लुकमा, ये पकी पकाई रोटी उसी नबी उम्मी अरबी की रहमतों का बातनी सदका है जिसका फैजान सीना बसीना चला आ रहा है। 1923 का जिक्र है। बारिश का मौसम था। कई दिन से फजा में सकूत और ऐसी हैबत तारी थी कि मछेरे और गांव के बड़े बूढ़े भी ये कह रहे थे कि कोई जबरदस्त तूफान आने वाला है। एक दिन नौ उमर बाबा साहब घुटनों में सर दबाए खुदा जाने किस आलम में गर्क बैठे थे कि बेसाख्ता रहमान खान को आवाज दी जैसे बहुत ही उजलत हो, और उनसे कहा कि तुम लोग फौरन घर चले जाओ, एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। ये जो काला कंबल पड़ा है उसे खूब अच्छी तरह मेरे गिर्द लपेट कर पैरों के नीचे दबा दो। रहमान खान और दूसरे खादमों ने बहुत इसरार किया कि आपको छोड़कर हम कैसे जाएं, आपका क्या हाल होगा, मगर बाबा साहब ने सख्त हाकिमाना लहजे में इनसे फरमाया कि जैसा कहा गया है वैसा करो और ज्यादा बातें न करो। हुक्म था, किसकी मजाल थी इसमें दखल देता। बाबा साहब को कंबल लपेटकर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। रात क्या थी, कयामत थी। ऐसा तूफान इस गिरदो नवाह के लोग कहते हैं कि कभी न आया था। ऐसी मूसलाधार बारिश थी जैसे आसमान के कुआड़ खुल गए हों। ऐसी तेज हवा थी कि आसपास की पहाड़ियां भी हिलती हुई मालूम होती थी। बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ों से उखड़कर घसीटते हुए अपने साथ ऊंचे मकानों को तबाह करने लगे थे। कच्चे मकानों का तो क्या जिक्र, वो तो जैसे थे ही नहीं, और खपरेल के मकानों की छतें उड़ उड़कर कहीं से कहीं जा पहुंची। राजा का किला और इसके संगीन महल्लात लरजने लगे और इनके कुआड़ अपने कुंदे तोड़ तोड़ कर कहीं से कहीं जा गिरे। जो आलम बाहर था वही मकानों के अंदर। पानी हर गोशे में अपना जोश दिखा रहा था। कहीं जाए पनाह न थी। आदमी तो दीवारों की आड़ में कहीं न कहीं अपनी हिफाजत कर रहे थे, मगर बेचारे मवेशी थे कि तूफान के साथ बह चले जा रहे थे और न जाने कहां कहां टक्करें खा खा कर खत्म हो रहे थे। परिंद इस तरह दरख्तों और दीवारों से टक्करें खाकर जमीन पर गिर रहे थे जैसे किसी की आंखों से आंसुओं के कतरे। वो रात क्या थी, गोया कयामत थी। बूढ़ों ने खुदा की पनाह मांगी और उसको याद किया, और जवान अपनी अपनी कारसाजियों और तदबीरों में मशगूल रहे। जंगल में चट्टानों पर तनतना छोटी सी फूंस की झोपड़ी में अल्लाह का एक बंदा सरबजानो काली कमली में लिपटा हुआ बैठा था। इस पर जो गुजरी इसका अंदाजा कौन कर सकता है। मखलूक परेशान थी। माए बच्चों को सीने से लगाए जहां दीवार का सहारा मिल गया धड़कते दिलों अल्लाह अल्लाह करने बैठ गईं। बच्चे सरासीमा, जवान बदहाल और बूढ़े अल्लाह अल्लाह और राम राम का विर्द कर रहे थे।
नफसी नफसी थी, किसी को किसी का होश न था। उस फकीर की जो जंगल में था कौन फिक्र करता। ऐशो आराम के दिन चुटकियों में गुजर जाते हैं, मगर मुसीबत का एक एक लम्हा ऐसा मालूम होता है कि वक्त साकिन हो गया और ये लम्हा कभी ख़त्म ना होगा। इस शिद्दत का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर यह वक्त गुजरा हो, और वो भी उसी वक्त तक जब तक कि वो वाक़या गुजरता है। बाद में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ एक धुंधला सा ख्याल ही बाकी रह जाता है। दुनिया वाले वक्त को घड़ियाल आफताब के तुलू गुरूब और मौसमों के आने जाने से नापते हैं, मगर आशिक वक्त को दिल की धड़कनों से, कल्ब के इस्तराब और अपनी मुतहय्यर आंखों के सुकूत से नापता है। महशर बदामान रात जूं तू कट ही गई, सुबह हुई तो न वो शोर था न वो तूफान। सूरज मुस्कुराता हुआ अपनी किरणों का सोना तकसीम कर रहा था और इसकी पेशानी पर ऐसा मालूम हो रहा था कि पसीने के नन्हे नन्हे कतरात जमे हैं और वो किसी सख्त मेहनत के बाद थक सा गया है। जमीन का बुरा हाल था, जंगल के दरख्त और इन दरख्तों पर कुछ सांप लिपटे हुए, कुछ मुर्दा, कुछ जिंदा इधर उधर दिखाई दे रहे थे। हर किस्म के जानवरों की लाशें झाड़ियों में लिपटी हुई थी। ये सब कुछ आपस में इस तरह खलत मलत थे कि जैसे किसी मुसव्विर ने तख्ती पर कोई हसीन मंजर बनाने के बाद हाथ फेर दिया हो। दरियाओं पर जो बड़े बड़े पुख्ता पुल बने हुए थे उनका कहीं नामो निशान न था। रहमान खान साहब और उनके साथियों को फिक्र हुई कि न जाने बाबा साहब जिंदा हैं या मर गए। वो बीवी बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करके चंद साथियों को लेकर बाबा साहब की झोपड़ी की तरफ भागे। बाबा साहब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, न कोई सड़क और न ही कोई पगडंडी, और जो रास्ता था भी वो जंगल के झाड़ झुंड से पटा पड़ा था, मगर एक जज्बा था जो उन लोगों को लिए जा रहा था, और मंजिल पर वही पहुंचते हैं जिनका जज्बा सादिक होता है। आखिर ये लोग वहां पहुंच ही गए। देखा तो चट्टान तो नजर आ रही थी, मगर झोपड़ी का पता नहीं। अलबत्ता चट्टान पर कोई काली काली सी गठरी जरूर नजर आती है। उन लोगों के दिल धड़कने लगे कि कहीं बाबा साहब खत्म तो नहीं हो गए। डरते डरते करीब पहुंचे तो देखा कि जिस तरह से उन्हें छोड़कर गए थे वैसे ही इस कंबल में लिपटे हुए बैठे हैं। ये लोग भी समझदार थे, इस डर के मारे कि अल्लाह जाने जिंदा हैं तो किस हाल में हैं और किस आलम में हैं। उन लोगों की हिम्मत न हुई कि करीब जाकर उन्हें हिलाकर देखें। आसपास जो भी सूखी लकड़ियां मिली उनको जमा करके उन्होंने बाबा साहब के आगे आग जला दी। थोड़ी देर के बाद जब अच्छी खासी आग रोशन हो गई तो उसमें और बहुत सी बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल ली। अब कद्दे आदम शोले भड़कने लगे, मगर इस कंबल की गठरी में न कोई हरकत पैदा हुई न कोई जुम्बिश। उन लोगों को बड़ी परेशानी हुई। मोहब्बत का रिश्ता था और खिदमत का लगाव। दिल ये कैसे तस्लीम करे कि ख़त्म फसाना हो गया। ये लोग और करीब पहुंचे और पागलों की तरह चीख चीख कर शोर मचाने लगे। फिर इस वारिफ्तगी के बाद शदीद गम, यास और हसरत के साथ ये लोग खामोश हो गए और गठरी की तरफ तकने लगे कि इसमें कोई हरकत तो नहीं हुई। चंद मिनट के बाद गठरी में से एक गहरी आवाज निकली, बाबा। वो बाबा की आवाज थी या एक आह थी। उन लोगों के दिल बाग बाग हो गए। ज़बान से निकला, खुदा का शुक्र है बाबा साहब जिंदा हैं। अब ये लोग करीब हो गए और कंबली खोली जो बर्फ की तरह ठंडी थी। इसमें बाबा साहब सरबदानों, हाथ घुटनों से लपेटे हुए उसी तरह बैठे थे जिस तरह ये लोग छोड़ कर गए थे। सारा जिस्म लकड़ी की तरह सख्त हो गया था। इन लोगों ने उठाने की कोशिश की मगर गर्दन सख्त हो गई थी। अलबत्ता पेशानी गर्म थी और इस पर पसीने के कतरे थे। जल्दी जल्दी एक शख्स घर गया और चाय का सामान लाया। इस वक्फे में जितने भी लोग वहां आ गए थे अपने हाथ सेक सेक कर बाबा साहब को गर्मी पहुंचाने लगे। चुनांचे थोड़ी देर के बाद बाबा साहब के जिस्म में गर्मी आ गई और आपका अजू अजू खुलने लगा। बिलाखिर घंटा डेढ़ घंटे में आपका बदन इस काबिल हो गया कि लोगों ने आपको उठाकर खड़ा कर दिया। आपने हाथ पांव को हरकत दी और चाय नोश फरमाई। उस वक्त बाबा साहब के चेहरे पर
बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराहट थी जैसे सुबह के सूरज के चेहरे पर थी, और पेशानी पर पसीने के कतरे भी उसी तरह थे जैसे थके हुए हों। बातिन के भेद कौन पाए और इस समुंदर की गहराई का अंदाज़ा कौन लगाए। तूफानी रात में दुनिया पर जो गुजरी वो तो सब ने देखा, और जो बाबा साहब के खाकी जिस्म पर गुजरी वो भी कुछ ऐसी ही होगी जैसे औरों पर बीती। मगर अंदर क्या हो रहा था और मशीयत का वो कौन सा इरादा था जो एक कोहे आतिश फिशां की तरह शोलाजन था। बज़ाहिर देखने को दुनिया वही थी और बाबा साहब भी वही थे, मगर हो क्या गया था इसे कौन बताए और कैसे बताए। जब फना की मंजिलें पहले ही से तय हो गई हों तो फिर ये फना दर फना क्या बात थी, और फना होती किन चीज़ों को है। राज़े हयात क्या है, क्या मूतो कबलन तमूतो भी कोई मंजिल है, और जिस्मानी ज़िंदगी में क्या इसका भी कोई नाजुक मकाम है जो खुशनसीब इंसानों को इस किस्म की फना से मैसर आता है। सब कुछ सही, मगर फना कैसी, बका कैसी जब उसके आशना ठहरे। 1951 की बात है। एक दिन एक खादिम ने बाबा साहब से पूछा कि मुरीदी क्या चीज़ है, तो बाबा साहब ने फरमाया, तुमने कभी कलमी आमों के पेड़ों की परवरिश होते हुए देखी है। एक आम की एक गुठली ली जाती है, चाहे वो किसी किस्म के आम की हो, आम कहलाती है। उसको एक गमले में दबा दिया जाता है। जब पौधा साल 2 साल में हाथ भर का हो जाता है तो किसी कलमी दरख्त में, चाहे वो दरख्त सूरनरीका का हो या इमाम पसंद का हो, लटका दिया जाता है। उस छोटे से पौधे के नाजुक से जिस्म में चाकू से शगाफ किया जाता है। उसको तकलीफ भी होती है और आंसू भी निकलते हैं। ऐसा ही शगाफ उस दरख्त की शाख में भी किया जाता है, और इन दोनों के शगाफ ज़दा हिस्सों को आपस में मिलाकर कपड़े की धज्जी से बांध दिया जाता है और थोड़ी सी मिट्टी लगाकर फिर उसको रोज़ाना पानी से तर रखा जाता है। इसी तरह उस दरख्त के साये में अरसे तक वो पौधा रहता है, और जब कलम बंद शाख में 2 नए पत्ते निकल आते हैं तो फिर दरख्त से जो पेवस था उसको कलम कर दिया जाता है। उस वक्त गमले वाले पेड़ को तो कोई तकलीफ नहीं होती, मगर उस कलमी दरख्त को तकलीफ ज़रूर होती है जैसे उसकी कोई उंगली कट गई हो। फिर गमले को नीचे उतार कर उस दरख्त के साये में कहीं रख दिया जाता है। उस गमले में अब 2 शाखें होती हैं, एक अपने तुख्म की और एक अपने सिलसिले की। मैं और तू की कशमकश होती है। माली की तवज्जो शामिल हाल होती है तो असली तुख्मी शाख को काट कर फेंक दिया जाता है और गमले में सिर्फ कलमी शाख की पत्तियां रह जाती हैं। अब उस पौधे को कोई तुख्मी नहीं कहेगा, वो तो कलमी ही कहलाएगा, चाहे वो सूरनरीका का हो या नाजुक बदन का। अगर माली का तसर्रुफ उस गमले तक नहीं पहुंचा तो 2 शाखों में से कलमी शाख सूख सूख कर ख़त्म हो जाती है और वो पौधा जैसा था वैसा ही तुख्मी का तुख्मी रह जाता है। ऐसा पौधा अगर ज़मीन में जड़ पकड़ भी ले तो दांत खट्टे कर देने वाला आम, महज गुठली और पोस्त, रेशा ही रेशा, न खुशबू न रस। और अगर कलमी पेड़ से काम लेना होता है तो माली तुख्मी शाख को कलम कर देता है। अब तू ही तू, या यूं कहिए कि अल्लाह बाकी रह जाता है। अब उस गमले को शफकत के साये से हटाकर और गमले को तोड़कर मिट्टी से मिट्टी मिला दी जाती है। ये गोया मुरीद का क़याम हो गया, वो बैठ गया। धूप की तेज़ी और तूफ़ानी हवादसात उसे झेलने पड़ते हैं, और वो तू ही तू अल्लाह की ग़ज़ा खाते हुए सूरज की रोशनी, मिट्टी की ताकत, ज़िंदगी की ताकतों और बारिश के फैज़ान से तरोताज़गी हासिल करता हुआ बढ़ता चला जाता है। जो माली दूरंदेश होते हैं वो 2-4 फसलों के फूल भी झाड़ लेते हैं कि फल ना आए, क्योंकि उस नौउम्री के फल फीके होते हैं और उनमें कोई जान नहीं होती। जब ये दरख्त काफ़ी सायादार होते हैं और उसमें फितरत के गैर मामूली हवादिसात को बर्दाश्त करने की ताकत और सलाहियत पैदा हो जाती है तो उसे देखकर माली और बाग का मालिक दोनों खुश होते हैं कि ये मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, खूब फल देता है, देखने में हसीन, चखने में लजीज,
نہایت لطیف اور خوشبودار۔ اس کے عام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہضم کرنا ضرور دشوار ہوتا ہے، مگر ہوتے ہیں نہایت صحت بخش اور طاقتور۔ یہ ہے مریدی، لیکن پیری کیا چیز ہے یہ بھی کبھی بتلاؤں گا۔ کیا وہ طوفانی رات وہی رات تھی جب کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ بیٹا، نے گملے کو اپنے آپ سے جدا کر کے اپنے ہی سائے میں رکھ دیا تھا؟ کیا وہ رات وہی رات تھی جب بطن مادر سے دنیا کی روشنی میں شور اور ہنگامے کے ساتھ ایک عظیم ہستی آئی تھی؟ کیا وہ رات وہی رات تھی جب ایک قدوسی ہستی کی روح اس چھوٹے سے جسم میں رہتے ہوئے مکان و زمان کی آہنی زنجیروں کو ختم کر چکی تھی؟ کیا وہ رات وہی رات تھی جب بجائے اس کے کہ آسمان کا سورج اس زمین کو زندگی بخشے، اس ہستی کے قلب کا سورج آسمان کے سورج کو نور و جلال بخش رہا تھا؟ کون آئینہ ہے اور کون آئینہ دار؟ کون دیکھ رہا ہے اور کس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ عشق کیا چیز ہے؟ عاشق کون اور معشوق کون؟ اللہ اللہ، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس نئے کا نالا تھا جسے اس کی زمین سے کاٹ کر اس رات جدا کیا گیا تھا، تاکہ اس قدوسی زندگی میں قدم رکھے جس کا نالا و فغاں ہر خوابیدہ دل کو جگا دیتا ہے۔ از نیستاں چو مرا ببریدہ اند، از نفیر مرد و زن نالیدہ اند، جب سے مجھے نیستاں مرکز سے کاٹ لائے ہیں اس وقت سے دنیا بھر میری پکار سے نالا ہے۔